Good morning students. Welcome in our life skill online classes. Now let's start with a new chapter. Good morning students. Today we are going to start our chapter number 8, Love in Action. That means there should be love in our action, and the subtitle is Sense of Social Responsibility. We all live in a social setup which is an unusual mix of various factors like mix of people, lifestyle and the ecosystem. As a responsible citizen and human being, first we have to be socially responsible towards our slum areas of our surrounding. In today's busy world, where every aspect of our life is ruled by technology, the human touch has lost its existence and we are becoming natural to what's happening around the world. Right from birth to childhood, from teenage to adulthood, our upbringing reflects in our behavior. Millions of children around the world have no chance of ever attending a school because they are so poor. Many of them are instead forced from a very young age to do physically demanding work. The slums typically lack proper sanitation, safe drinking water, or systematic garbage collection. There is usually a severe shortage of space inside the houses where the children live. But that does not mean that these children have no childhood. They also have right to education. So as a human being, it is our responsibility to educate the slums or poor children who are not able to go regular school like us. Let's see in today's story how some students teach poor children in the nearby slum through a school outreach program. Let's start today's story. And the name of the story is I Take Full Responsibility. If you have any doubts from yesterday's class, please ask, said Naman, a student of class 11th, as she began teaching mathematics to the students of class 5. नमन जो कि क्लास 11th का स्टूडेंट है, उसने क्लास 5 के बच्चों को जाके जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसने बच्चों से कहा कि अगर आपको कल की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. This week it was Naman's turn to teach along with Akhil. इस हफ्ते नमन का टर्न था बच्चों को पढ़ाने के लिए. किसके साथ? अखिल के साथ. नमन की ड्यूटी थी पढ़ाने की. They thoroughly enjoyed their interaction. वो बहुत ही enjoy कर रहे थे उनके साथ interaction करके. I don't ask many questions because I fear others will make fun of me. I am weak in maths, said वरुण. वरुण ने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे. मैं मैथ्स में भी बहुत वीक हूँ. नमन रिप्लाइड, नेवर बी अफ्रेड, प्रैक्टिस डेली, यू विल इम्प्रूव. नमन ने क्या कहा वरुण की बात सुन के कि कभी भी डरो मत, प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव हो जाओगे. स्तुति, इंचार्ज ऑफ इंग्लिश क्लास, सेड, वी आर part of Udan, the school's outreach program to teach poor children in nearby slums. स्तुति जो कि क्लास में इंग्लिश की इंचार्ज थी, उसने कहा कि हम उड़ान एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हमको बच्चों को जो नियर बाय स्लम्स एरियाज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं. Through Udan, students of class 11th and 12th teach all subjects from English to music and dance. इस उड़ान प्रोग्राम के थ्रू हम बच्चों को 11th-12th के जो बच्चे हैं वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. इंग्लिश से लेकर म्यूज़िक और डांस सारे सब्जेक्ट्स 11th-12th के बच्चे उन स्लम एरियाज़ के बच्चों को पढ़ाते हैं. Even junior can join us. Is everyone interested? इसमें जूनियर बच्चे जो हमसे छोटे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. क्या कोई इंटरेस्टेड है? ऐसा किसने कहा? स्तुति ने.
The entire class raised their hands in excitement. पूरी क्लास ने एक्साइटमेंट के साथ हैंड्स रेज किए. Well, I am glad that everyone is excited. In case you are busy, you can teach the children of the helpers who visit your home, said Sania. सानिया ने क्या कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर कोई एक्साइटेड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को, स्लम एरियाज़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हैं. आप अगर बिजी भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो हेल्पर्स जो आपके घर में काम करने के लिए आते हैं उनके बच्चों को आप पढ़ा सकते हो. ऐसा किसने कहा? सानिया ने. इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, आई थिंक आई कैन डू दैट, सेड दक्ष. तो दक्ष ने क्या कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ. थ्रू दिस प्रोग्राम वी कैन डू अवर बिट and help children who are unable to go to regular school like us. इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देके और उन बच्चों की हेल्प करके जो कि स्कूल हमारी तरह स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको भी हम एजुकेट कर सकते हैं. It is our duty to empower them with the basic tools of education to lead an independent life, said Sania. सानिया ने क्या कहा कि ये हमारी ड्यूटी है उनको एम्पावर करने के लिए कि उनको भी बेसिक टूल्स जो एजुकेशन के, मतलब उनका जो राइट टू एजुकेशन है, उनका जो शिक्षा का अधिकार है वो लोग पा सकें और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें. ऐसा किसने कहा? सानिया ने. तो जिस तरह से वरुण, सानिया, दक्ष इन सभी ने मिलके स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रिजोल्यूशन लिया, इस तरह से आप भी अपने घर में जो मेड आते हैं या आपके आस पड़ोस में नियर बाय एरिया में जो पुअर बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको आप भी एजुकेट कर सकते हो. नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड्स फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव to nurture and protect our ecosystem. That means हमको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने, उसका पालन पोषण करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए. Voicing corners about how the poor suffer when the environment is destroyed. हमको आवाज़ उठाना चाहिए किसके खिलाफ? जो पुअर, जो गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं. जब इन्वायरमेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जब पुअर लोग सफ़र करते हैं उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए. टेकिंग नेसेसरी स्टेप टू हेल्प पीपल हु लैक द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ. दैट मीन्स हमको नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए उन गरीबों की हेल्प करने के लिए जिनके पास किस चीज़ की बेसिक एनिमिटीज़ जो ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें उसकी भी उनके पास कमी है. तो उसके लिए हमको नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. टू रियलाइज़ दैट द नीड्स ऑफ पीपल विल बी डिफरेंट. ये हमको रियलाइज़ करना चाहिए कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड रीच एन एग्रीमेंट. हमको ये ज़रूरी है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझें और उसके बाद ही किसी एग्रीमेंट पे पहुँचें. टू कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर टूवर्ड्स हार्मनी एंड पीसफुल एक्सिस्टेंस. हमको सबके साथ मिल के कोऑपरेट करके कोई काम करना चाहिए और आपसी तालमेल होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से हमको सबके साथ मिल के काम करना चाहिए. So students, social responsibility is a duty every individual has to perform so as to maintain a balance between the economy and ecosystem. It should be our aim to ensure secure health care for people living in rural areas. Okay, thank you and have a nice day.